Hello, my dear students. I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. Today we are going to do the chapter Diary of Anne Frank from your book First Flight. So let's start. Full name of Anne Frank was Anneliese Marie Frank. She was born on 12 June 1929 at Frankfurt am Main, Germany, and she was died in the month of, it's not confirmed whether February or March 1945, and died at Bergen-Belsen concentration camp near Hanover. So you know very well what is concentration camp. I told you about this in the last video. Concentration camp means you can say a dying camp, alright. So where Jewish people को रखा जाता था, because Nazis used to it was a thinking of Nazis that जितनी भी हमारे पास worries हैं, anxieties हैं, जो भी कुछ है, that is because of these Jewish people. And this girl Anne Frank was from Jewish origin. She was a Jewish girl whose diary of her family's 2 years in hiding during the German occupation of the Netherlands became a classic of war literature. So this girl got a diary from her father at the age of 13. So in that diary everything is written over there what she did during those 2 years. जब जर्मनी ने नेदरलैंड पे, जहाँ पे नेदरलैंड में वो रहते थे, वहाँ पे अधिकार कर लिया था एंड उनको छुपना पड़ रहा था नाजीज के टेरर की वजह से. किनको? ज्यूज को नाजीज के टेरर की वजह से छुपना पड़ रहा था. एंड उन नाजीज को हेड करने वाला कौन था? उनका लीडर कौन था? एडोल्फ हिटलर. सो उस डायरी में बहुत कुछ लिखा है एंड मैनी लैंग्वेजेस में वो डायरी का, एन फ्रैंक की डायरी का ट्रांसलेशन हो चुका है. बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं उस पे. एंड हियर दिस सम पार्ट ऑफ दैट डायरी इज पब्लिश्ड इन योर बुक. तो ये जो एक चैप्टर है आपका, ये क्या है? एक रियल लाइफ अकाउंट है. ये कोई फिक्टिशियस चीज नहीं है. इट्स अ रियल लाइफ अकाउंट ऑफ एनीज डायरी. This extract is taken from her diary. So the author feels that it is strange and unusual for her to write a diary because it is the first time she is doing it. वो ये सोचती हैं, कौन? एनी, कि बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है कि वो एक डायरी लिखती हैं और वो ये सोच रही हैं कि इट्स द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार वो ऐसा कर रही हैं. She feels that in the future no one will read about a young girl's past experiences. She says that nobody will be interested, so much interested in reading somebody's diary. मतलब फ्यूचर टाइम में कोई भी उसकी डायरी पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा. किसी गर्ल के पास्ट एक्सपीरियंसेस को कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा? शी थॉट सो. बट देन शी पुट्स दीज थॉट्स अवे एंड डिसाइड्स टू राइट हर थॉट्स. सो व्हाट डिड शी डू? उन्होंने इन सारी बातों को एक तरफ, शी पुट ऑल दोज थिंग्स असाइड. एक बार वो जो थॉट्स उसके मन में आ रही थी उनको सबको एक साइड पे करके उसने, शी डिसाइडेड दैट शी विल राइट अ diary. So the author is feeling very lonely as she has no friends to talk to. So she felt very lonely. उसको बहुत अकेलापन महसूस होता था. तो क्योंकि उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिनके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकें. उनके घर में उनकी सिस्टर थी मार्गोट, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में, किसने? एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में उनके बारे में बहुत कुछ मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो उसको, अपनी सिस्टर को, अपने ज़्यादा क्लोज नहीं मानती थी. सो मेनी पीपल वर देयर इन आवर फैमिली. कौन कौन थे? उनके फादर थे, मदर थी, ग्रैंड मदर थी एंड उनकी सिस्टर थी. लेकिन उनको किसी से बहुत ज़्यादा, ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, फादर से था, लेकिन शी वॉज सर्चिंग फॉर अ ट्रू फ्रेंड. एक उनको ट्रू फ्रेंड चाहिए था. शी वॉन्ट्स टू गिव हर नीड ऑफ अ फ्रेंड अ शेप, hence decides to name the diary as Kitty. So this diary was given to her on her 13th birthday by her father. and वो चाहती थी कि उसका कोई भी ऐसा फ्रेंड हो जिसकी कोई शेप हो, मीन्स अ ह्यूमन टाइप समथिंग. तो what did she do? When she didn't get any good friend, any true friend, so
she thought that from now this diary will be my good friend, and she gave her the name Kitty. It's written over here. So the writer feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level. Very important statement, students. So what does she say? वो क्या कहती हैं अपने extract में, अपनी डायरी में? She says that exact words are paper has more patience than humans. तो क्या है? पेपर हैज़ मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब थॉट्स. वो बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है. मीन्स पेपर हैज़ द होल्डिंग पावर. आप जितना भी उसके साथ शेयर करना चाहो यू कैन डू, बट इफ़ यू डू द सेम थिंग विद ह्यूमन्स दे विल गेट बोर्ड. सो वो बोलती हैं कि इतना सब कुछ अगर हम किसी को बताएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, बट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ह्यूमन्स एंड पेपर कैन होल्ड एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर. तो वो क्या करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, अपना जो भी कुछ उनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे एज अ गर्ल, उनका बॉयज़ के लिए क्रश, उनका उनकी फैमिली मेम्बर्स से जो भी वो न्यूज़ सुनती थी, कुछ भी. एक्चुअली इट वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो जो भी कुछ बाहर की दुनिया में होता था वो सारा कुछ अपनी डायरी में नोट करती थी. शी हैज़ अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स. वो सब कुछ फ्रेंड्स उनके पास थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स जिनको बोलते हैं, जिनके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकती थी, ऐसे फ्रेंड्स वो नहीं थे. एंड वो एक ज्यूज़ भी थे, एंड ऐसा होने की वजह से शायद उनकी बात कोई लीक भी कर सकता था, इसलिए वो क्या करती थी, अपने सीक्रेट्स किसी को भी रिवील नहीं करती थी. एंड रिवील करती थी तो अपनी डायरी को. हर नेम वॉज किटी. डायरी का नाम उन्होंने क्या रखा था? किटी. शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल हु प्रेजेंट्स हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे. एंड वो अपने फादर को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि एंड उनके फादर ने ही उनको ये डायरी कब दी थी? उनके 13th बर्थडे पर. On June 20th, 1942, she mentions how her class is nervous about their results. Now, एक इंसिडेंट वो डिस्क्राइब करती हैं. And what was the date? This was June 20th, 1942, when the class was shaking with fear. Class क्या कर रही थी? पूरी तरह से the entire class is shaking with fear. The teacher will decide in the next meeting who will move up and who will be kept back. Means it was the time of the results. Means the whole class was was nervous about their results. The author says that the only subject she is unsure about is mathematics. And author means एनी को सबसे ज़्यादा डर किस में लग रहा था? वो अनश्योर सबसे ज़्यादा किसके लिए थी? मैथमेटिक्स के लिए. एंड वन मोर थिंग शी सेज अबाउट टीचर्स, दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. यानी टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. एंड वो सारे स्टूडेंट्स इसलिए नर्वस थे, उनको ये था कि किस स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, इसी क्लास में रखा जाएगा, एंड किसको प्रमोट किया जाएगा. अब वो इसलिए एंड वन मोर थिंग, मैथमेटिक्स में वो श्योर इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे एक्सेप्ट मैथ्स. She is not very sure about maths. She has good relations with her teachers, but Mr. Keesing's her math teacher is an old-fashioned teacher. He doesn't like her because she talks too much. वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए उनको अपने मैथ्स टीचर से थोड़ी सी ट्यूनिंग सही नहीं थी, इसलिए उनको मैथ्स में डर लग रहा था. She and her friends, this is friends, S, okay. She and her friends are trying to stop the students from making noise, but to no avail. Actually, सारे इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे सारी क्लास शोर ना मचाए, लेकिन कुछ नहीं. They were talking. According to the author, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activities. उन्होंने क्या बोला? क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब जितनी पूरी क्लास है उसमें से 1/4 स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते. Annie recalls how the maths professor is constantly irritated by her talkativeness. अब वो recall करती हैं, वो remember करती हैं, वो याद करती हैं. क्या चीज़ याद करती हैं? कि उनके जो maths professor थे, what was the name of that professor? Mr.
कीसिंग। तो वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली इरिटेटेड रहते थे। किससे? एनी की टॉकेटिवनेस से, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत से। वाइल टॉकिंग इन हिज क्लासेस ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। सो कोई पनिशमेंट के रूप में उनको क्या मिलता था? डंडे या मार नहीं मिलती थी, उनको होमवर्क के रूप में क्या मिलता था? बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए, जितना अदर स्टूडेंट्स को दिया जाता था उससे एक्स्ट्रा इनको एज अ पनिशमेंट दिया जाता था होमवर्क के लिए, कि ये होमवर्क करके लेकर के आना है। द फर्स्ट पनिशमेंट इज टू राइट एन एसे ऑन चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मीन्स जो बहुत ज़्यादा बोलता है, विच द ऑथर थिंक्स एज वियर्ड। एंड वो सोचती थी, एनी ने सोचा कि ये क्या टॉपिक है, तो बहुत अजीब टॉपिक है। मीन्स उनका क्या मानना था? अ यंग स्टूडेंट नीड्स टू टॉक एंड फील जॉयस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट। मीन्स इफ यू टॉक अ लॉट एंड इफ यू फील जॉयस, यू कैन स्टे मेंटली फिट। मीन्स अगर आपके मन में कोई भी टॉकिंग है, अभी कुछ भी है, तो अगर आपको उसको रिवील कर दें तो क्या होगा? मन का बोझ हल्का होगा एंड यू विल स्टे मेंटली फिट। ये बात कौन फॉलो करती थी? एनी। She imagines about the topic and decides to present concrete argument in support of talking. When this essay was given to her for writing as a punishment, what did she decide? She decides to present concrete arguments. उन्होंने सोचा कि वो talking के support में क्या करेंगे? अपने argument लिखेंगी. She writes that she will try to better herself but cannot eliminate talking completely. She writes, what did she write in her essay? उन्होंने वो लिखती हैं कि वो अपने आप को बेटर करने में कोशिश करेगी. She will try her best to better herself. अपने आप को इम्प्रूव करने की हर कोशिश करेगी, बट वो बोलना कम नहीं कर सकती. पूरी तरह से बोलना, एलिमिनेट मीन्स खत्म करना, कम करना, तो वो बोलना खत्म नहीं कर सकती. The professor finds it amusing but allots another topic after she did not change her nature. अब इतना होमवर्क मिलने के बाद भी जब एनी का नेचर चेंज नहीं हुआ, तो what did the maths teacher do? Maths teacher, what did the maths teacher do? He gave her another topic for writing. Okay, because Annie's nature was not changed. So the topic is, so what was the topic given to her for writing an essay? Again, this was an incorrigible chatterbox. Incorrigible means जिसको सुधारा न जा सके. So an incorrigible chatterbox which refers to a habit that is difficult to change. Incorrigible means the habit which is difficult to change, जिसको change ना किया जा सके. After keeping an eye on her, professor gives her another topic. This was her third time. This was, क्या टॉपिक था दिस टाइम? फर्स्ट टाइम कौन सा टॉपिक था? एक टॉपिक उनको फर्स्ट टाइम मिला था, दैट वाज चैटर बॉक्स. सेकेंड टॉपिक वाज ऑफ एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एंड नाउ दिस वाज द third topic given to her for writing an essay as an extra homework, that is quack quack quack, said Mistress Chatterbox. As a punishment, she runs out of thought after writing 2 times on a similar topic. Now अब उनके पास जो thoughts थी वो खत्म हो चुकी थी. सेम टॉपिक पे twice she has already written, वो 2 बार लिख चुकी थी उसी सेम टॉपिक पे. Now अब वो सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए ऐसा जिससे इस पे लिखा जाए. So what did she do? She decides to write her third topic in the form of a poem. So twice उन्होंने ये उस पे ऐसे लिखा था, और अब वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि वो इस पे अब एक पोएम क्रिएट करे. And writes a satire, and luckily the professor takes it lightly. उन्होंने एक एज अ सटायर लिखी वो पोएम, एंड उसमें किसके बारे में लिखा था? उसमें उन्होंने क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटबॉक्स, इसमें उन्होंने क्या लिखा था? उनकी एक फ्रेंड थी, हर फ्रेंड सैन, SANNE, सैन उनकी एक फ्रेंड थी, इज गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी. शी ऑफर्स टू हेल्प हर, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी. एनी वॉन्ट्स टू टर्न द टेबल ऑन मिस्टर कीसिंग,
शी फिनिशेज द पोएम अबाउट अ मदर डक एंड उन्होंने उस पोएम में किसके बारे में लिखा, एक मदर डक के बारे में लिखा एंड फादर स्वैन के बारे में लिखा एंड उनके 3 बेबीज के बारे में, 3 बेबी डकलिंग्स थे उनके बारे में एंड दे आर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोलते थे इसलिए उनके फादर ने उनको, फादर स्वैन ने उनको एक दिन इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई. सो आफ्टर रीडिंग दिस, ये स्टोरी पढ़ने के बाद the professor recites the entire poem in front of the class and the author talked uninterruptedly after this. and इस पोएम को जब उन्होंने पूरी क्लास के सामने रिसाइट किया, पूरी क्लास के सामने पढ़ के सुनाया, तो क्या हुआ, मिस्टर कीसिंग को अंडरस्टैंड, मतलब उनको समझ में आ गया द पोएम एंड इट्स मैसेज इन द राइट वे, उनको मैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया. सिंस देन शी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक, इसके बाद उनको अनइंटरप्टेडली टॉकिंग का चांस मिल गया, उनको कोई कुछ नहीं कहता था, इवन मिस्टर कीसिंग भी उनको कुछ नहीं कहते थे. She has not been assigned with any extra homework after this. So, thank you so much students. Now in the next video we will discuss all the textual questions and in the after this textual questions के बाद वाले वीडियो में हम बनाएंगे सारे additional question answers. Okay? So keep watching, stay connected. Thank you so much.